Good morning, students. So today we are going to study the next topic of the chapter magnetic effect of electric current. In the previous class, we studied that how what is actually the magnetic field is, and also we studied the properties of magnetic field lines. Today we are going to study about the magnetic field. So what about the magnetic field? The first topic will be the magnetic field due to current carrying conductor. So today's the first topic is magnetic field due to straight current carrying conductor, not current carrying conductor. We have to study about the magnetic field due to a straight current carrying conductor. So let us consider there is a straight current carrying conductor in which current is passing from bottom to top. ये हमारा कंडक्टर है, इसमें करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक. Now how the magnetic field will be produced around this conductor? किस टाइप से magnetic field इसमें कब बनेगा, ये हमको जानने का है. So the magnetic field due to current carrying conductor can be given by the rule. This rule is called the right hand thumb rule. It is called the right hand thumb rule. That rule is very important rule to find the magnetic field due to the current carrying conductors. So how to find the magnetic field due to a straight current carrying conductor? So to find the magnetic field due to straight current carrying conductor, what should we do? What is basically the rule is? The rule says that if we hold a current carrying conductor, in our right hand, such that the thumb points to the direction of current, then the curved fingers around the conductor will give the direction of electric current, direction of magnetic field. तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? तो इसका एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, बोल रहा है कि अगर आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से अपने राइट हैंड में पकड़ लो कि आपका थंब जो है करंट के डायरेक्शन को शो करे. ये मेरा थंब है और ये थंब क्या कर रहा है? तो करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है. करंट किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ. तो मेरा थंब भी ऊपर की तरफ है. तो बोल रहा है उस केस में जो आपका कर्व्ड फिंगर्स है कंडक्टर के अराउंड, द कर्व्ड फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर. सो ये हमारा कंडक्टर है. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नेटिक फील्ड विल बी गोइंग टू बी a circular and then it is going to be a concentric circular. So अगर हमको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है तो हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे यूज कर सकते हैं. और ये रूल क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो करंट कैरिंग लूप के अराउंड सर्कुलर पाथ पे होगा, वो भी कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ पे होगा. जैसे जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर से हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होना शुरू हो जाएगा. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय B. The strength of magnetic field is denoted by B, and the magnetic field due to the straight current carrying conductor, the magnetic field due to the straight current carrying conductor is proportional to the current amount of current is passing through the it, and it is inversely proportional to the distance from the center. कहने का मतलब है
ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमको बन रहा है किसके किसकी वजह से, तो करंट के कंडक्टर की वजह से। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसमें कितना करंट पास कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा करंट पास करेगा उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो जितना इस करंट के कंडक्टर से दूर जाते जाएंगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उतना हमारा स्लो, उतना हमारा वीक होता जाएगा, स्लो उतना वीक होता जाएगा। ठीक है। वन मोर थिंग यू मस्ट नो दैट द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, the SI unit of magnetic field intensity is टेस्ला। टेस्ला भाई साहब थे, इन्होंने मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारा काम किया, इसीलिए इसका मैग्नेटिज्म का SI यूनिट के नाम पर रख दिया गया क्या, तो टेस्ला, जिसकी कैपिटल T से डिनोट करते हैं। What is the full name of Tesla? His name was Nikola Tesla. One of the most exciting scientists to know about him. बहुत ही इन्होंने गजब का काम किया और काफ़ी फेमस है अपने ग्रुप में, साइंटिस्ट के ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। भले आप लोग अभी उतना नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो निकोला टेस्ला के बारे में आपको पता चलते जाएगा, उनके बारे में जितना। जैसे अभी अगर आप लोगों से पूछा जाए कोई भी साइंटिस्ट, जैसे साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं, साइंटिस्ट का सुनते ही मैक्सिमम लोगों के माइंड में दो ही नाम आते हैं, एक तो आएगा न्यूटन और दूसरा आएगा आइंस्टीन। लेकिन निकोला टेस्ला भी वैसे ही गजब के साइंटिस्ट है। मे भी हमको उनके इन्वेंशंस का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, बट उन्होंने बहुत सारा वर्क किया रिगार्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। नाउ एक आगे जाएंगे तो आपको एक नया एक्सपेरिमेंट का उनके बारे में पता चलेगा। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसका उसी के नाम पर उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट का नाम भी है टेस्ला कॉइल। टेस्ला कॉइल क्या होता है? टेस्ला कॉइल एक ऐसा कॉइल होता है जिस कॉइल के हेल्प से हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कर सकते हैं, बिना वायर के ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन करने की कैपेबिलिटी रखता है अगर टेस्ला कॉइल की जैसे हम डिजाइनिंग कर लें तो वो तो आगे की चीज़ें हैं, बट रिमेंबर द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज टेस्ला। नाउ ये रूल क्या हुआ, तो ये रूल हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल पा रहे हैं किसके थ्रू, एक करंट के कंडक्टर के थ्रू। अब एक और रूल होता है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। उस रूल को बोला गया कॉर्क रूल। ये रूल क्या कहता है, होता है कि एक स्क्रू ले लो, स्क्रू पता है ना, स्क्रू की नहीं, स्क्रू जिसको हम लोग घुमाते हैं तो अंदर जाता है और इस तरह से घुमाते हैं तो ऊपर आता है। तो बोला कि कॉर्क स्क्रू रूल सबसे अच्छा यूज कर लीजिए। ये रूल क्या कहता है, तो ये रूल कहता है कि अगर हम एक स्क्रू को कंसीडर करें और हमको क्या करना है, स्क्रू को अंदर लेके जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम स्क्रू को हम लोग को राइट इस तरह से हमको रोटेट करना पड़ेगा। अगर हम राइट डायरेक्शन में उसको रोटेट करते हैं तो ये नीचे जाएगा। कहने का मतलब है अगर कोई करंट का कंडक्टर है वो नीचे जा रहा है, मतलब क्या होगा, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगा। और अगर हमको स्क्रू को खोलना है तो क्या करना है, तो उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करने, तो ये क्या कर रहा है, उसके रोटेट करने पे ऊपर जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे रोटेट करे ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रूल से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी करंट के कंडक्टर के थ्रू। दैट इज वेरी वेरी यूजफुल टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। आइदर कॉर्क स्क्रू रूल वी कैन यूज or we can use the right hand thumb rule. Okay, now the next topic is the name of the topic is magnetic field due to
सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो हम लोग एक लूप कंसीडर कर लेते हैं। ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल भी है, और ये एक लूप है, क्योंकि लूप में भाई करंट का कहीं कहीं से सेंड करना होगा, तो इसमें हम लोगों ने स्टेप्स डिजाइन कर दिया है। करंट कैसे जाता है भाई, तो करंट प्लस से लेके माइनस की तरफ फ्लो करेगा, तो प्लस से बाहर निकला, ऐसे आया और ऐसे चला गया, वापस ऐसे करके एंट्री कर जाएगा। कब, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये सिचुएशन हुआ कब, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के अराउंड। अब इसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक पोर्शन कट कर लेंगे और यहाँ पे एक पोर्शन कट कर लेंगे। यहाँ पे करंट किया जा रहा है तो ऊपर, यहाँ पे करंट किया जाता है, करंट जा रहा है नीचे, ठीक, वहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। ये अगर पोर्शन को हम स्ट्रेट करंट के कंडक्टर मान रहे हैं, इस करंट के कंडक्टर की वजह से अगर करंट ऊपर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, so anti-clockwise. So magnetic field due to this small segment should be like this, in anti-clockwise direction. ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड क्या, तो इस सेक्शन की वजह से। अगर हम इस सेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, इसके से मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये हो गया। So in short we can describe the magnetic field around a current carrying circular loop like this. That means inside the loop the direction of magnetic field is in the same direction. The magnetic field is in the same direction और magnetic field lines जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अंदर की बात करते हैं तो अंदर में inside the loop the magnetic field lines are parallel to each other and they are moving in the same direction. So we can write that inside the loop, first point the magnetic field is strong. Magnetic field is strong and they are parallel to each other. Almost एक दूसरे के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कहाँ, तो लूप के अंदर। So inside the loop the magnetic field line is very strong and they are parallel to each other. मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहता है। Outside the loop magnetic field is weak. लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। और ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो सबका सेम होगा लूप के अंदर। कैसे हम लोग किए, तो सबसे पहले क्या किया, तो हमने दो सेक्शन कट कर दिए, इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दिए, तो हम लोग डायरेक्शन दे दिए, ये हमारा इजीली मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। अगर हम किसी भी दो पॉइंट, किसी भी दो सेक्शन पे कट करें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इसी टाइप से आएगा। तो ये तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो किसकी वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर लूप। दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो यू मस्ट नो हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके, ये हम ध्यान दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। हमारे पास एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट के हेल्प से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट।
सो व्हाट इज अ बार मैग्नेट? सो बार मैग्नेट, इसको हिंदी में बोलते हैं छड़ चुंबक। ये कुछ स्टेप्स होता है, एक पोल होता है नॉर्थ, एक पोल होता है साउथ। सो लेट्स दिस टू बी नॉर्थ पोल एंड दिस टू बी द साउथ पोल. So it has been found that the magnetic field lines are like this inside the outside the magnet. The outside the magnet, the magnetic field lines start at N and goes to end at S. N से स्टार्ट होके S पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है? But inside the magnetic field, inside the magnet, the magnetic field line is from south to north. Okay, so ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है किसकी वजह से? तो एक बार मैग्नेट की वजह से। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, बाहर में इस टाइप से होगा, अंदर में इस टाइप से होगा। तो बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। सो वी कैन राइट अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एज so we can write that first one, magnetic field, ध्यान देंगे, is from N to north to south, नॉर्थ दिल्ली से साउथ दिल्ली, नॉर्थ टू साउथ inside the magnet, sorry, outside the magnet. And inside it is from south to north, south to north. तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेगा और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ रहेगा। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके थ्रू? तो एक बार मैग्नेट के थ्रू। नाउ some more points can be written about this. One thing, outside the magnet, the magnetic field is weak. The magnetic field is weak, while inside the magnetic field is strong and uniform. Is strong as well as uniform. ठीक है? तो मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? तो वीक है, लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? तो स्ट्रॉन्ग है, साथ साथ यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, बताते हैं यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। So I think it is going to be a very you can say a tough day for me. मैंने क्या किया, I was recording the video and took a small break to have a water, पानी पीने। जैसे मैं बाहर गया मतलब घर में अंदर गया, मैं आया और मैं भूल गया कैमरा को फिर से स्टार्ट करना। मैंने सारा टॉपिक कंप्लीट कर दिया और जब जाके देखता हूँ तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। इससे बुरा क्या हो सकता है? रात के 1 बज रहे हैं और मेरे को फिर से रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ रही है। क्या बोलूँ, किस्मत। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे थे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फिर से रिपीट करना, दैट इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर मी। वो भी जब छोड़िए, तो क्या कह रहे थे हम लोग? मैंने बोला कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जब बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक समान हो।
हर जगह सेम वैल्यू हो। अगर मैं देख पा रहा हूँ एक बार मैग्नेट कह रहा हूँ, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो रहा है। बाहर में मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, यहाँ पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वीक है। और देखिए मैं अंदर की बात करूँ तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में हमको एकदम एक सेम स्पेसिंग मिल रही है। तो अंदर में बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो यूनिफॉर्म है एज वेल एज स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्लोज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितने क्लोज होंगे उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। अब हम बाहर के और अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर करें, अगर ये बाहर का हो गया ये अंदर का हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या पा रहा हूँ कि आउटसाइड द मैग्नेट the magnetic field lines are very far apart. That means the magnetic field is weak, and inside the magnetic field lines are very close to each other, so magnetic field is very strong. Okay? एक और चीज मैं देख पा रहा हूँ बाहर और अंदर के कि क्या हो रहा है कि अंदर में जो हमारा है, अंदर की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी पास हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन काफी पास होते हैं, इससे यहाँ तो स्ट्रॉन्ग हो गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको मिल ही नहीं रहा है। मतलब ये जो रीजन में देख रहा हूँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एकदम वीक होता है। कभी भी आप बार मैग्नेट का यूज करो, उसके बीच में चिपकाने की कोशिश करो तो देखेंगे कि आपको नहीं चिपक रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफी वीक होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ आपको मिलेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगे एक ऊपर साइड और एक बीच में, और इधर साइड काफी कमजोर रहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहते हैं लेकिन काफी वीक रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We are going to start a topic. What is a solenoid first? What is a solenoid? So basically, a solenoid, it is an arrangement. It is an arrangement of insulated copper wire. Insulated copper wire in the form of helix. In the form of helix. Helix मतलब helical path. In the form of helix, such that the radius of the loop, such that the radius of the loop is much smaller than the length of the solenoid. अगर मैं सोलेनॉइड बना रहा हूँ तो सोलेनॉइड कैसे होता है, तो ये इंसुलेटेड कॉपर वायर्स रहते हैं, उसको ये जो हमारा पाथ है इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं। हेलिक्स के फॉर्म में इसको लपेटा जाता है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा बन गया क्या, तो ये बन गया हमारा सोलेनॉइड। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा सोलेनॉइड बन गया। अब ये जो हमारा सोलेनॉइड बन रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे होते हैं। Now in the some cases the magnetic field is not that strong, so to make the magnetic field as strong, what we simply do, we insert a soft iron core inside the solenoid. सोलेनॉइड के अंदर हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाता है। और ये जो है ये हमारा है इंसुलेटेड कॉपर वायर। So this is our insulated copper wire, this is our battery, and because of this the current is going to pass through the solenoid, and this current is going to produce the magnetic field lines, and it has been found that the strength of magnetic field is equal to V equal to mu naught N into I, where mu naught is called, ये फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, it is called the permeability of free space, N equal to number of
turns per unit length. What is I? I is basically the current. So this is what actually the solenoid is. Solenoid is an arrangement in which a insulated copper wire is in the form of helix, and inside the helix, inside the space of the helix, we introduce a soft iron core. And what does the soft iron core basically does? It increases the magnetic field strength inside the solenoid. तो मैग्नेट को ये सोलेनोइड कोर स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है. तो ये बेसिकली सोलेनोइड का काम होता है. होता क्या है सोलेनोइड के बारे, सोलेनोइड पे अगर हम बात कर रहे हैं तो सोलेनोइड एक ऐसा अरेंजमेंट है, सोलेनोइड हमारा एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें क्या हो रहा है. तो सोलेनोइड के अंदर जिसमें क्या होता है, ये एक तरह से मैग्नेट की तरह काम करता है. जो हमारा बार मैग्नेट है वही हमारा सोलेनोइड है. तो सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट. सोलेनोइड क्या होता है, तो बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट होती है. जब हम लोग 12th क्लास में जाएंगे, 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक सोलेनोइड को बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं, या किस तरह से एक बार मैग्नेट को हम सोलेनोइड के इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं. सो लेट अस गो टू द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनोइड. ड्यू टू अ सोलेनोइड, एक सोलेनोइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है. सो व्हाट वी हैव लर्नड जस्ट रिसेंटली, मैंने अभी आपको क्या बोला, तो एक सोलेनोइड जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो बार मैग्नेट के. तो बार मैग्नेट का सिचुएशन क्या था, तो एक बनता था नॉर्थ पोल, एक बनता था साउथ पोल. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहे थे भाई. मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ मूव करेगा किधर, तो आउटसाइड ऑफ बार मैग्नेट. तो यहाँ पे भी बनेगा एक नॉर्थ एक साउथ पोल. तो कौन बनेगा नॉर्थ, कौन बनेगा साउथ, कौन बनेगा करोड़पति, यही खेलते हैं आप लोग. जो जवाब देगा कौन बनेगा नॉर्थ पोल वो बनेगा करोड़पति. कैसे डिसाइड करें, तो इसके लिए एक रूल आता है. इस रूल को बोलते हैं, ध्यान देखिएगा, ये क्या है, सांप जैसा दिख रहा है क्या, केचुआ, अर्थवर्म. ये एस है और इस एस के दोनों ओर हम लोग मुंह बना देते हैं, एरो बना देते हैं. अब ये एरो क्या बोल रहा है, एरो बोला कि ऐसे घूमिए, ये नीचे आना चाह रहा है, ये ऊपर आना चाह रहा है. ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब अगर लूप में क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो वो पोल एस के हिसाब से बन जाएगा साउथ पोल. करंट पास किया, करंट जाएगा, तो करंट इसमें कैसे गया, तो करंट इसमें तो क्लॉकवाइज ही जा रहा है, देख रहे हैं. क्योंकि क्लॉकवाइज करंट जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साउथ पोल और ये बन जाएगा अपोजिट नॉर्थ पोल. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ नहीं जाता है, साउथ से नॉर्थ के अपोजिट है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया अंदर का, बाहर का. और अंदर में क्या होता है, अंदर में ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा जैसे बार मैग्नेट में हो रहा. सो व्हाट वी कैन सी, what is the magnetic field lines due to a bar magnet, same the magnetic field line is due to a solenoid. There is no difference between the bar magnet and a solenoid. Okay, आगे बढ़ते हैं. जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, आगे बढ़ने से हम क्या देख पा रहे हैं, ये हो गया हमारा सोलेनोइड हो गया, ये हमारा सोलेनोइड हो गया, ठीक है, वो बार मैग्नेट हो गया. अगर हम पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, अब क्या होगा, अब करंट भाई इधर से इधर फ्लो करेगा, इधर से करंट फ्लो करेगा, मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जस्ट अपोजिट. अब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया. एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, तो हम लोग बनाएंगे एन. ये एन हो गया. एन का एरो क्या शो कर रहा था, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज करंट रहेगा, यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है
मतलब ये बन गया नॉर्थ पोल, ये बन गया साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर जाएगा, तो नॉर्थ से साउथ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड इनसाइड द बार में इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। This is how the magnetic field lines behaves inside a solenoid. The solenoid is just behaving like a bar magnet. The magnetic field lines, the design of magnetic field lines is the same as the bar magnet. It is going from north to south, and all the things are just similar like a bar magnet. So we can see that this is the magnetic field due to a bar magnet. Okay. Now this is all from today's topic. We'll see some questions in the next upcoming classes, but for the time being, today's class is going to be off. We'll see in the next class. Hope ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ हो, अदरवाइज भाई मैं तो जा रहा हूँ सोने। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं देख लेता हूँ।